વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય હિન્દીમાં 12મું ગદ્ય આપણે સમજી રહ્યા છીએ. પહેલો વિડીયો 62મા પેજ ઉપર જોઈ કે આપણે હવે 63મું પેજ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ચાલો જોઈએ 63મા પેજ ઉપર. उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी करवा बैठ गया. દિલીપ આપણે જોયું કાલે કે ઘરેથી નીકળો સાયકલ લઈ અને રસ્તાઓ દરવાજાઓ પસાર કરતાં કરતાં જૂનીકોટના બગીચામાં થઈ અને મિન્ટો પાર્કમાં આવીને બેઠો. તો ઉસ એકાંતમાં એક બેન્ચ કે સહારે, એ એકાંતની અંદર એક બાકડાના સહારે સાયકલ એણે ઊભી કરી અને પોતે બાકડા પર બેસી ગયો. सिर से टोपी उतार बेंच पर रख दी. माथा पर टोपी पहरी थी ये पण उतारीने बाकड़ा पर रखी दी थी. सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई. મગજની અંદર માથાની અંદર ઠંડી લાગવાને કારણે એના મગજમાં જે ગરમી હતી, મસ્તિષ્ક કી વ્યાકુલતા, વ્યગ્રતા હતી, વ્યાકુળતા હતી, એ કુછ કમ હોય, થોડી ઓછી થઈ. चिंता थोड़ी ओछी थी. ठंडू पवन लगवाने कारण मगज शांत थी. एम ख्याल आया यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा. એને વિચાર આવ્યો કે જો ઠંડી લાગવાને કારણે બીમાર થઈ જશે, એની હાલત ખરાબ થઈ જશે, તો ચૂપચાપ એ શહીદની જેમ એનું દુઃખ એકલો સહન કરશે. અને આમે માણસે પોતાનું દુઃખ એકલાએ સહન કરવું પડતું હોય છે. દુઃખમાં કોઈ ભાગીદાર બની શકતો નથી. ક્યાંય લાગી જાય તો જેને લાગ્યું હોય એને જ એ પીડા સહન કરવી પડતી હોય છે. એટલે શહીદની જેમ, શહીદ પણ જેમ એકલો લડતા લડતા મૃત્યુ પામે અને એ જ પીડા, એ જ વેદના એને જ સહન કરવાની આવે, એમ અહીંયા દિલીપને જે એની પત્ની ચાલી ગઈ છે પિયર રીસા, અને પોતે એકલો થઈ ગયો છે, ये दुख इन्हें एकला ही सहन करवाना है. किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा. कोईने पण एना दुख में भाग लेवा माटे बुलावशे नहीं. एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर शांत कर चली जाएगी. एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी. અને એક દિવસ મૃત્યુ દબાતા દબાતા પગલે આવશે. અને હકીકત છે, મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, અફર છે. ફરે નહીં એવું. કારણ કે આ જગતનું જો સનાતન સત્ય હોય તો તે મૃત્યુ છે. જેને ટનાટન સહિત સત્ય પણ કહી શકાય. કારણ કે મૃત્યુ બધા ઉપર ફરજિયાત છે. એ ગમે ત્યારે ગમે તેને આવી શકે છે. એ પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય, કોઈ યુવાન હોય, કોઈ પણ. એટલે એ મૃત્યુ જેમ બિલાડી છે એ દૂધ પીવા માટે છાનામાના પગલે આવે, એમ મૃત્યુ પણ જાણે દબાઈ પાવ આएगी और उसके रोग के कारण, અને એના રોગના કારણે હૃદય કી વ્યથા, હૃદયનું જે દુઃખ છે, ઘોર દુઃખ, તીવ્ર માનસિક પીડા, और रोग को લઈ, અને રોગને લઈને उसके सिर पर सांत्वना का, सांत्वना यानी तसल्ली देना, તો सांत्वनाનો હાથ ફેરાવીને શાંત કરીને ચાલી જશે. એટલે દિલીપના વિચારો છે કે એક દિવસ આવી જ રીતે એ રોગગ્રસ્ત થઈશ અને આ રીતે મારા ઉપર મોત આવી અને મને એ સાંત્વનાનો માથા ઉપર હાથ ફેરવી મને શાંત કરી દેશે, એટલે કે મારું મૃત્યુ થશે. ઉસ દિન જો લોગ રોને બેઠે ઉનમેં હેમા ભી હોગી. અને એ દિવસે જે લોકો રોવા બેસશે એમાં હેમા પણ, એની પત્ની પણ હશે. उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी. અને એ દિવસે હેમા એના પતિને, એ પતિ નથી અને એનો નુકસાનનો અંદાજો કરી અને એ રડવા બેસશે. આપણે વ્યવહાર કે લીએ પછતાएगी, અને પોતાના વ્યવહાર માટે પસ્તાવો થશે. યહી બદલા હોગા. અને આવું દિલીપ વિચારી રહ્યો છે કે આ જ એના માટે બદલો કહેવાય. કે હું મરી જાઉં તો જ એને સમજાય કે શું છે ખરેખર હકીકત. दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया. અને દિલીપ ચૂપચાપ દુઃખ સહન કરવાનો વિચાર કરીને અને એના સંતોષ સાથે એક લાંબો નિશ્વાસ નાક સે શ્વાસ બહાર નિકાલના, नाक से सांस बाहर निकालना, उनसे कहते हैं निश्वास. वो निश्वास हो. करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वो बैठ गया અને પડખું બદલાવીને પાછી એ ઠંડી હવા મેળવવા માટે પાછો બેસી ગયો. એટલે આ દિલીપના મનમાં આવા વિચારો ચાલે છે.
હા આ દુઃખમાં, આ એકાંતમાં, આવા સમયમાં એને આવા મનમાં વિચારો ચાલે છે કે પોતે દુઃખ સહન કરશે અને એના સંતોષ સાથે નિશાસો ફેંકે છે અને ઠંડી હવા ખાવા માટે પાછું પડખું બદલાવે છે, બીજી બાજુ ફરે છે. समीप 3 फलांग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियाँ गुजर चुकी थी અને જ્યાં એ બગીચામાં બેઠો હતો ત્યાંથી 3 જ ડગલા દૂર, 3 ફલાંગ દૂર જેને રેલવે લાઇન આવેલી છે અને ત્યાંથી કેટલી બધી ગાડીઓ પસાર થાય છે. એ કેટલી બધી ગાડીઓ પસાર થઈ ગઈ હતી. ઉધર દિલીપ કા ધ્યાન ન ગયા હતા, પરંતુ દિલીપનું ધ્યાન એ બાજુ ગયું પણ ન હતું. કેટલી ગાડીઓ પસાર થઈ ગઈ, રેલગાડીઓ. अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा. હવે જ્યારે પેલો ફ્રન્ટિયર મેલ, જેમ સૌરાષ્ટ્ર મેલ આવે એમ ત્યાં ફ્રન્ટિયર મેલ તોફાન, તોફાનની જેમ તીવ્ર વેગ, ઝડપી ગતિથી કોલાહલ કરતી हुई, ખૂબ જ અવાજ કરતાં પસાર થાય છે, ત્યારે દિલીપે એ બાજુ જોયું. लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया कि फ्रंटियर मेल जा रही है. 9:30 बज गए અને સતત ફર્સ્ટ ક્લાસ અને સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બાઓમાં જે તીવ્ર પ્રકાશ એનાથી જે બહાર નીકળતો હતો, તીવ્ર પ્રકાશ જે પડતો હતો એના પરથી સમજી જાય છે દિલીપ કે ફ્રન્ટિયર મેલ જે ગાડી જઈ રહી છે અને 9:30 બજ ગઈ. 9:30 વાગી ગયા છે, કારણ કે 9:30 આવવાનો ટાઈમ હશે. स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उसका मन हल्का हो गया था. स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देख उसका मन हल्का हो गया था. પોતે જ સહન કર અન્યાય ને પ્રતિકાર એટલે બદલા ચૂકવાના, જે પોતાના પર આવેલું દુઃખ છે એનો બદલો લેવાની સંભાવના, શક્યતા જોઈ અને એનું મન હલકું થઈ ગયું, મન શાંત થઈ ગયું કે પોતે આ રીતે પોતાનો એ બદલો લેશે. વહ લौटने के लिए उठा. એ ફરી પાછો ઘર તરફ આવવા માટે ઊભો થયો. शरीर में कुछ शैथिल्य बाकी रहने के कारण साइकिल पर वह न चढ़ पैदल पैदल बागो बाग बादशाही मस्जिद से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा. અને શરીરમાં કુછ શૈથિલ્ય યાની શિથિલતા, ઢીલાસ, શરીરમાં ઢીલાસ, નિરાશા બાકી રહેને કે કારણ સાયકલ પર ન ચડ, સાયકલ પર સવાર ન થયો અને પેદલ બાગો બાગ એટલે પગપાળા, એક બાગથી બીજા બાગ, બાદશાહી મસ્જિદ છે ટકસાલી દરવાજે, બાદશાહી મસ્જિદથી જે ટકસાળી દરવાજો છે, ઓર ટકસાલી સે ભાટી દરવાજા, અને ટકસાળી દરવાજાથી ભાટી દરવાજે પહોંચ્યો. માર્ગ में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो. માર્ગની અંદર કદાચ કોઈક જ વ્યક્તિ જોવા મળ્યો, दिखाई दिया हो. सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे. અને સડક કિનારે યાને માર્ગના કાંઠા ઉપર, રસ્તાના કાંઠા ઉપર સ્તબ્ધ ખડે, રસ્તાના કાંઠા ઉપર સ્તબ્ધ ઊભા રહેલા વીજળીના જે થાંભલાઓ છે, વીજળી કે લેમ્પ, અને એમાં લગાવેલા લેમ્પ જે છે વીજળીના લેમ્પ, એ નિષ્કામ એટલે जिसके मन में कोई इच्छा न हो उसे कहते हैं निष्काम. और निर्विकार जिसमें कोई विकार न हो, परिवर्तन न होता हो, इसे निर्विकार કહે. તો નિષ્કામ અને નિર્વિકાર રીતે એ એવા ભાવથી પોતાનો પ્રકાશ એ માર્ગ પર ફેલાવી રહ્યા હતા. કોણ? વીજળીના લેમ્પ. मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध बांध कर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे. અને લાખો પતંગિયાઓ ગોળ બાંધ બાંધ કર, ગોળાઈ સ્વરૂપે એ ઉડી રહ્યા હતા. બાંધ બાંધ કર इन लैंपों के चारों, લેમ્પની ચારે બાજુ નૃત્ય કરી રહે थे, નૃત્ય કરી રહ્યા હતા, ઉડી રહ્યા હતા. और जगत के अद्भुत नमूने थे, અને જગતના એ જાણે અદ્ભુત નમૂનાઓ હતા. प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था. અને દરેક પતંગિયું એક નક્ષત્રની જેમ પોતાના માર્ગનો ચક્કર કાપી રહ્યા હતા. જેમ નક્ષત્ર છે એ પોતાનું ચક્કર કાપતા હોય એમ આ પતંગિયા પણ લેમ્પની આજુબાજુ ઉડતા હતા. कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था, कोई दाएं कोई बाएं को,
कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई नाना कोई मोटा समूहनी अंदर कोई डाबी बाजू, कोई जमणी बाजू, कोई आगळ, कोई पाछळ, विपरीत गति, विरोध गति में पण निरंतर सतत ये चक्कर कापी रहा था। कोई किसी से टकराता नहीं। आटला पतंगियाओ लेम्पनी आजूबाजू उड़ता था पण कोई थी भटकाता न था। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे अने वृक्षोना ए भींजाई गયેલા जे પાંદડાઓ છે એ વીજળીના પ્રકાશની અંદર ચમકી રહ્યા હતા। વૃક્ષોના ભીંજાયેલા પાંદડા એ વૃક્ષો વીજળીના પ્રકાશમાં ચમકી રહ્યા હતા, ચમચमा रहे थे। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर कोई छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। ज्यों ज्यों वह लैंप से आगे बढ़ता परछाई पलटकर पीछे हो जाती। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई, एक लेम्पना नीचेथी आगळ वधेली एनो छोटी परछाई, एनो नानकड़ो પડછાયો आगे फैलती चलती, एनो आगळ चालती हो एवं लगतुं हतुं। ज्यों ज्यों वह लैंप से आगे बढ़ता, जेम जेम आगे वधे परछाई पलट कर पीछे हो जाती। अने दिलीप छे, रात पड़ी गई है, रातना समये लैंपना प्रकाशमां जेम जेम ए आगळ वधे छे एम एनो પડછાયો पण आगळ वधे, पण जेम लैंपथी आगळ निकळता परछाई पाछળ परछाई पलट कर पीछे हो जाती, पाछળ थी जाए। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती अने वच्चे वच्चे वृक्षों की डाळीओं ने जो પડછાયા છે એના ઉપરથી निकली जता था। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था अने मार्ग पर पड़ेला दरेक પાંદડાઓ लैंपों की किरणों का उत्तर दे अने जे लैंपना किरणों पड़ी रहा था एना जवाब आपी रहा था। एटले के किरणों त्यां भटकाता था अने परिवर्तन पामता। मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। माणस विना संसार पण केटलो व्यस्त छे। भले मनुष्य नहीं पण ए सिवायनी जे जंतुओ छे एना कारणे लेखक कहे छे के आ दुनिया केटली व्यस्त छे, रोचक छे, ए जोवा मळे छे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्षों की छाया ने कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। अने थोड़ा डगला आगे बढ़ता मार्गना किनारे नींबू के वृक्षों की छाया, લીંબુડીના ઝાડ, લીંબુ કે વૃક્ષો की छाया, એનો છાંયડો કોઈ શ્વેત सी चीज दिखाई दी। ये छांयડામાં કંઈક सफ़ेद चीज જોવા મળી। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहिरे एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा था। कुछ और बढ़ने पर थोड़ा डगला त्यांथी पण आगळ वधता कोई नानकड़ो छोकरो सफ़ेद कुर्तो पहेरीने, कुर्तो पायजामो पहेरीने तो एक थाली सामने रखे, एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा था। एक थाली सामे राखी अने कंईक वेची रह्यो हतो। जेने कुर्तो पायजामो तो ए पहेरेलो एक छोकरो, नानकड़ो छोकरो छे अने एने थाली में कंईक वस्तु राखी छे, ए वेची रह्यो छे। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। बचपन अंदर ए दिलीपे गली मोहल्ले में शहरी गलियों अंदर विस्तार अंदर लड़कों के साथ छोकराओनी साथे एने अक्सर घणी वार खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। पकोड़ा वाला पासेथी पकोड़ा खरीदीने खाधा था। अब वह इन बातों को भूल चुका था। अत्यारे दिलीप ये बातों ने भूली गया था। परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। परंतु अभी ठंडी नी अंदर शमशान सड़क पर जहाँ कोई आने वाला नहीं, ज्याँ कोई आवा वाळो नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। आ पकोड़ावाळो अहींया केम बैठो छे, आवो एने प्रश्न थाय छे। खोमचे वाले से क्षुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया अने पकोड़ावाळानो ए क्षुद्र शरीर साव ए जेने कहेवाय ने नबळुं शरीर आयु अने
थोड़ी उम्र में उसका ध्यान आकर्षित किया, इन्हों ध्यान केंद्रित करियो अथवा तो खींचियो। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढीबरी तक नहीं। अने एणे जोयुं कि रात में सौदा बेचने निकलने रात्रि दरमियान आ जे सौदागर है, जे वेचनारो है बाळक, जे पकड़ा वेचनार है, एनी पासे मिट्टी के तेल की ढीबरी तक माटीना तेलनो दीवड़ो पण नथी। अंधारामां ए बेठो छे जेनी पासे माटीना तेलनो दीवड़ो पण नथी। समीप आकर उसने देखा, बाजू में आवीने जोयुं वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। ये छोकरो ठंडी हवा में संकोचाईने बैठो था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। दिलीप ने बाजू में आवेलो जोई अने एनी एक आशा भरी नजर एणे एना पर नाखी अने आंखें झुकाली, आंखें नीचे कर लीधी। ए बाळकने एम के दिलीप कंईक लेशे एवी आशा साथे एणे दिलीप सामे जोयुं अने पछी नीचे जोई गयो। दिलीपने और ध्यान से देखा। दिलीपे फरी पाछुं वधारे ध्यान आपीने जोयुं। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की चतुरता न थी। एणे जोयुं के छोकराना मुख पर जे पकोड़ा वेचवावाळानी जे चतुराई होय एवी चतुराई न हती, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता, पण एनी जगह थी एक डरपोकता कायरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। उसकी थाली में खोमचे का थाल न होकर एनी थाली एवी नहोती जे पकोड़ावाळानो थाळो होय। घरेलू व्यवहार या घरनी कोई एक मामूली एवी हल्की मुरादाबादी थाળી होय एवी थाળી हती। तराजू भी नथी अने पेला कांटा झोंकवा माटेनो वजनिया पण न हता। थालू में कागज के 8 टुकड़ों पर पकोड़ा की बराबर ढेरियाँ लगाकर रख दी गई थी अने थाळीनी अंदर कागळना 8 टुकड़ाओं पर पकोड़ानी बराबर ढेरियाँ એટલે कुछ चीज़ों का लगाया गया समूह 8 टुकड़ा करेला पकोड़ानी थप्पी राखी देवामां आवी हती। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर है। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। दिलीपे विचार्યું कि आवी ठंडी रातनी अंदर अमे 2 व्यक्ति ज बारे छीए, एक दिलीप अने एक पकोड़ा वेचनारो नानो बाळक। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। एनी बाजू में जईने बेसी गयो। मनुष्य में कितना भेद होता है, पर तो मनुष्य तो एक चीज़ है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। अहींया लेखक कहे छे कि माणस में केटलो फेर होय छे, परंतु मनुष्यत्व એટલે કે मानवता एक चीज़ जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती, पण मानवता है ये आ भेदों की दीवारों ने ओळंगी जाए छे। दिलीप के समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा। दिलीप पेला छोकरानी बाजू में आव्युं अने बाजू में आवता ज छोकराए तरत कीधुं। शुं कीधुं ए पछीना पेज पर पछीना विडियो में आपणे जोशुं। त्यां सुधी राखीए विद्यार्थी मित्रों। थैंक्स।